Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon. So we have started doing the chapter multiples and factors. Chapter number 3, multiples and factors. And I showed you some videos based on multiples and factors in the previous classes. Okay, so I will again introduce the topic myself. Okay, everyone ready? Yes, sir. Okay. So this is chapter 3. Multiples and factors. Okay. So yeah, just let me tell you one more time what are multiples. So multiples are the numbers which are divisible by a given number. Okay, or you can also say that the numbers which come in the table of a given number are known as its multiples. For example, let me tell you some multiples of 3. Multiples of 3. The first multiple of 3 is 3. Second is 6. You don't have to write this in your copy. Don't write anything in the copy right now. आपको कुछ भी नहीं लिखना है कॉपी में. I will tell you what to write in your copy afterwards. Okay, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है. अभी कुछ नहीं लिखना आपको कॉपी में. Okay, just try to understand what I am explaining. Multiples of 3 are 3, 6, 9, 12. All these numbers come in the table of 3. Am I right or not? 3 की tables में आते हैं. Table में आते हैं ये सारे numbers. So these Yes, are known sir. as Yes, sir. multiples of 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26, sorry, 27, 30, 33, 36, and so on. आगे भी हो सकते हैं. Am I right? So how many multiples 3 have? 3 has 3 के कितने multiples होते हैं? It could be infinite, any number of multiples, unlimited. Am I right or not? Unlimited Yes, sir. multiples हो सकते हैं 3 के.
Okay, so if I ask you, have you all understood क्या होते हैं multiples? ऐसे numbers जो किसी given number के table में आते हैं, these numbers are known as multiples of that given number. Okay, can you tell me the first 5 multiples of 4? sir. 4 into 4, 4 Tell me first 5 multiples of 4. 4, 4 8, 1 the 4, 4 to the 8, 4 to the 12, 12, 4 4 is 16, 4 5 to 20. 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28. बस. So I asked for only the first 5 multiples. So first 5 multiples यहाँ पे खत्म हो गए. 4, 8, 12, 16, 20. 5 पूछे थे मैंने. If I ask you the first 7 multiples of 4, तो क्या ऐड करेंगे? ये लिखने के बाद इसमें 24 and 28 और ऐड कर देंगे. Am I right? First 7 multiples अगर मैंने पूछे, तो you will start from 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24 and 28, and you will end at 28. So these are the first 7 multiples of 4. Okay. And okay, multiple of 5, जैसे कि for example, if I ask you that अच्छा चलो कैसे पता कैसे लगाते हैं कि whether a given number is a multiple of 5 sorry? is of हाँ. 15, 5 4 is of 20. Okay, suppose if I give you a number like this, 315, and I ask you, beta, please keep your mics off, everyone. Yeah. अरे फोन में तो फाइबर कोई होता होगा. Keep your mics off. लिखना है तो. So just please keep your mic off. Okay sir. Yes, sir. Avika, keep your mic off. Okay, so suppose if I have to check whether a given number is a multiple of another number or not. Suppose I want to check whether 315 is a multiple of 3 or not. किसका चेक करना है? क्या 315 3 का मल्टीपल है या नहीं है, ये मेरे को चेक करना है. तो मैं कैसे चेक करूंगा? How will I check? Is 315 a multiple of 3? क्या 315 3 का मल्टीपल है? You tell me. Sir. Yes, it is. Yes, sir. Yes, it is a multiple of 3. कैसे चेक करेंगे? You divide the given number by 3. 3 से डिवाइड करके देख लेंगे भाई कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है. Sir, So this- 3 ones sir, are this 3s. Right Minus is करा 15. 0 आ गया. And then Right is 13. यहाँ पर 1 है. 1 यहाँ पर आपने कॉपी किया. अब 0 1 is smaller than 3, so you will copy 5 also. जब आप when you copy 2 digits, you write a 0 here. जब आप 2 digits copy करते हैं एक साथ, तो आपको यहाँ पे 0 लगाना होता है. Okay? Division. So 15. 3 5s are 15. 15 हो गया ये. 15 minus 15 is 0. Okay, so quotient is 105. The important thing is what is the remainder? Remainder is 0. Remainder कितना आया? 0 आ गया. So when the remainder is 0, you can say that yes, 315 is a multiple of 3. क्या बोलेंगे हम? 315 is a multiple of 3. Yes. Understood? All of you? समझ में आ गया? Okay. So I will be giving you a number. You have to check whether the given number is a multiple of 4 or not. आपको चेक करना है. Is 486. Don't do this in your fair copies. Just rough में अभी करो. I am not making you write down anything in the copy. Okay. 486. Is it a multiple of 4 or not? क्या 486 4 का multiple है? Sir. Give me the answer. Sir, Yes. sir, we have to do this in a rough notebook.
यस यस, अभी रफ में करो, आपको अभी कॉपी में कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा अभी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ओके It is no. The answer is no. Correct. 486 is not a multiple of 4. कैसे करेंगे? 486 को डिवाइड करके देखेंगे। 1 4 रिमाइंडर 0, 8 कॉपी कर लिया, 2 8 रिमाइंडर 0, 6 कॉपी कर लिया, 1 टाइम 4 रिमाइंडर 2। The final remainder is 2. Remainder क्या आ रहा है? 2. Is this equal to 0? The remainder is 0? No. That means the given number 486 is not a multiple of 4. 486 is not a multiple of 4. Understood? 4. Okay, now you all check for 523. The number is 523. You have to check whether this is a multiple of 7 or not. Check करिए 523 is a multiple of 7 or not. Ma'am, sir, which page number we are doing? We are not doing any page number. I am just explaining the topic. मैंने अभी अभी चैप्टर स्टार्ट किया है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, आई एम नॉट गिविंग एनी क्वेश्चन, दिस इज टू बी डन इन द रफ। रफ में करो अभी इसको। 527 चेक, 523 को चेक करना है, इज इट अ मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट।
Yes, now tell me the answer, all of you. Is 523 a multiple of 7? Sir, answer is no. The answer is no. कैसे चेक करेंगे? You divide 523 by 7. 523 divided by 7. So 7 into 7 is 49. Remainder 3. Copy down 3. 33 हो गया. So 7 fourths are 28. Remainder 5. So the remainder is coming 5. The remainder is not 0. That means Excuse me, 523 sir. is not a multiple of 7. Yes, बताइए. Sir, I am saying that please tell what we are doing because I joined it late because of some network issue. Beta, I am introducing the chapter multiples and factors. मैं आपको explain कर रहा हूँ कि multiples क्या होते हैं. Okay. So, sir, we do not done Don't write any written anything work in this नहीं. class. Don't Okay, write sir. anything in. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So understood. This is 523 is not a multiple of 7. मल्टीपल्स एक तरीके से आपको समझ में आ गया. आप फैक्टर्स की बात करते हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए मैं समझाता हूँ क्या होते हैं फैक्टर्स. अभी अभी हमने सीखा था 315. 3 का क्या है? व्हाट इज 315 ऑफ 3? 315 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सीखा था 300 मल्टीपल. सॉरी, 315 is a multiple of 3. ठीक है था. अच्छा एक बात बताइए. हमारे you must be having some family members, है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर हैं, ओके, एंड आपके वो फादर हुए तो आप उनके कौन लगे? आप उनके सन या डॉटर लगेंगे. जो आपके फादर हैं आप अपने फादर के कौन है? सन या फिर डॉटर. ऐसी there must be someone who must be your uncle in the family. अंकल होंगे. ठीक है, तो अंकल के जो आपके अंकल हैं आप उनके कौन हुए? आप उनके या तो नीस होंगे या फिर नेफ्यू होंगे. नेफ्यू और नीस जानते हैं आप लोग? तो अंकल के नेफ्यू या नीस होंगे. ऐसे ही 315 3 के रिलेशन में है. 315 क्या है? 3 का क्या है? मल्टीपल है. और 3 अब 315 का क्या हुआ? 3 को हम क्या कहेंगे? 3 इज फैक्टर ऑफ 315. बताइए फैक्टर समझ में आया या नहीं आया? व्हाट इज फैक्टर? 315 is multiple of 3 and 3 is factor of 315. बताइए फैक्टर क्लियर हुआ कि क्या होता है? बताओ बेटा. आंसर माय क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू. Yes, sir. वेरी गुड. चलिए, सो कैसे चेक करना whether a number is a factor of a given number or not? बस आपको वही डिवीजन करके देखना है. अभी तो हमने एक ही तरीका सीखा है डिवीजन वाला. देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, सम शॉर्टकट मेथड्स आल्सो टू चेक. वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी देयर इज ओनली वन मेथड जो हमने अभी पढ़ा है. कि क्या मेथड है? यू जस्ट चेक बाय डिवाइडिंग. तो 315 को 3 से डिवाइड करा. 1 3 0 1 0 5 5 15 remainder 0. तो yes, 315 is a multiple of 3. एंड फिर हम क्या बोलेंगे? अगर डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? 3 is a factor of 315. तो फैक्टर ये होता है. ठीक है, चलिए लेट्स लर्न मोर अबाउट फैक्टर्स.
फैक्टर्स के बारे में और बात करते हैं. Now I am going to write a number, suppose 12. मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 12. ठीक है, दिस इज द नंबर 12. आपको आई एम गोइंग टू आस्क एंड यू हैव टू आंसर मी इन यस और नो. इज 1 अ फैक्टर ऑफ 12? क्या 1 12 का फैक्टर है? 12 क्या 1 से डिवाइड होता है? सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं. So is 1 a factor of 12? The answer is yes. चलिए, is 2 a factor of 12? क्या 12 2 की टेबल में भी आता है? Yes, 2 is a factor of 12. Is 3 a factor of 12? क्या 12 का फैक्टर 3 भी होता है? बताओ. Yes, sir. Yes, 3 is also a factor of 12. नेक्स्ट फैक्टर बताएंगे आप लोग मुझे 12 का. 3 के बाद अगला फैक्टर कौन सा है? Sir, 4. 4. Yes, 12 4 की टेबल में भी आता है. So 4 is also a factor of 12. इसके बाद मुझे बताओ नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है 12 का आफ्टर 4? Sir, 6. Sir, 6. 6. वेरी गुड. इज 5 अ फैक्टर ऑफ 12? क्या 5 12 का फैक्टर है? नो, No, sir. बिकॉज 5 से 12 डिवाइड नहीं होता. इज 6 अ फैक्टर ऑफ 12? द आंसर इज यस. 12 6 का फैक्टर, सॉरी 6 12 का फैक्टर होता है बिकॉज 12 6 की टेबल में आता है. सो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12. एंड फाइनली एक और नंबर है जो 12 का फैक्टर है. वो क्या है? वो है 12 itself. द नंबर इज 12 itself. तो 12 इन सारे नंबर्स का फैक्टर है. ये जो बीच में नंबर लिखा है 12, सॉरी 12, इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 12 है 6 फैक्टर्स. 1 2 3 4 6 एंड 12. 12 के कितने फैक्टर्स हैं? देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 12. 1 2 3 4 6 एंड 12 itself. ओके, तो a number has limited factor. एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट एक नंबर के मल्टीपल्स अनलिमिटेड हो सकते हैं. सॉरी, क्या कर रहे हो बेटा? Sir, 1 is an unlimited factor. A number has limited factors, but a number has unlimited multiples. Multiples जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं किसी नंबर के, लेकिन फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं. तो ये जो है सारे, ये हैं सारे फैक्टर्स. मैंने क्या बताया आपको? फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस बता रहा हूँ. ये सब क्या है? ये सब 12 के फैक्टर्स हैं. 1 2 3 4 6 एंड 12. और 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल्स ये होंगे, देखिए 12 24. दीज आर मल्टीपल्स. मल्टीपल्स बड़े हो जाते हैं, जनरली नंबर से बड़े हो जाते हैं. ओके, मल्टीपल्स कभी भी छोटे नहीं होते हैं किसी नंबर से, उससे बड़े ही होते हैं. तो 12 24 36 48 60 and so on. All these are multiples of 12. तो ये लिमिटेड होंगे या अनलिमिटेड होंगे? ये होंगे अनलिमिटेड, यानी कि नेवर एंडिंग. और ये क्या होते हैं? ये होते हैं लिमिटेड. फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर देयर आर ओनली 6 फैक्टर्स. मल्टीपल्स को आप काउंट नहीं कर सकते बिकॉज उनकी कोई लिमिट ही नहीं होती है, अनलिमिटेड होते हैं. ओके, अनलिमिटेड का मतलब जानते हैं? कोई ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होती है. ओके, तो अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? समझ में आ गया बच्चों को? बताइए, हैव यू ऑल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? बताओ बेटा, आंसर माय क्वेश्चंस एटलीस्ट. Yes, sir. बाकी बच्चे सो रहे हैं. जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, आई विल हैव टू मार्क देम एब्सेंट इन द क्लास. अगर आप आंसर नहीं करेंगे, Yes, sir. यूज ऑफ स्टेइंग इन द Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, sir. वेरी गुड.
So you have all have understood what are factors in multiple. Difference भी समझ में आ गया. Very nice. चलो मैं अगर आपसे पूछता हूँ, give me the factors of a given number. You try to find the factors of this number. ठीक है? So I'm writing a number 18 here. You tell me all the factors of 18. Starting from 1 से शुरू करो and tell me all the factors of 18. So first factor of 18 बताइए. Sir, can I tell? Is 1 a factor of 18? Yes, sir. 1 is factor of every Yes, number. इसके बाद बताओ. Second. Sir, 2. 2. Very good. Sir, 3. Then Sir, इसके 3. बाद 3. उसके बाद Sir, 6. Sir, 6. 4 is not a Sir, factor of 18. 5 is not a factor of 18. 6 is a factor of 18. Very good. 6 के बाद Sir, 9. 9 is a factor of 18. Very good. इसके बाद finally Sir, 8. Sir, 10. Sir, 18. 18 itself. 10 नहीं है बेटा. 18 Sir, itself. 18. So 1, 2, 3, 6, 9 and 18. All these are factors of 18. समझ में आ गया? Okay. ऐसे नहीं लिखना वैसे आपको. ठीक है, ये जस्ट टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है. Okay. Okay, so what you have to do in your copies right now, open page number 26. जल्दी से सारे बच्चे पेज नंबर 26 ओपन करेंगे. Open page number 26 in your copies. Sir, I open. Open. Now on this page you must be able to see the heading multiples. Multiples heading दिख रही है आपको? Yes, sir. हाँ, तो ये मल्टीपल्स के नीचे जो एक पैराग्राफ है, 3 लाइंस का एक पैराग्राफ है, दिख रहा है? 3 लाइंस का पैराग्राफ मल्टीपल्स के जस्ट नीचे. Yes, sir. Lines. So you have to note down this paragraph in your copy. एक काम तो ये करना है सबसे पहले, तो नंबर 1 मार्क कर लीजिए इसको. फिर सेकंड काम क्या करना है देखिए उसके बाद. अब मल्टीपल्स के ऊपर देखिए आप पेज नंबर 26. पेज नंबर 26 पर एक हेडिंग देखिएगी मल्टीपल्स. मल्टीपल्स के जस्ट नीचे एक पैराग्राफ है, 3 लाइंस का छोटा सा पैराग्राफ. You have to note down that in your copies. Okay. उसके बाद पहले मल्टीपल्स लिखना है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स. अब मल्टीपल्स के ऊपर देखिए, मल्टीपल्स के ऊपर जाइए. Yes, sir. मल्टीपल्स जो हेडिंग है उसके ऊपर देखिए, अ फैक्टर इज अ नंबर ऐसे करके लिखा हुआ है. लिखा है? Yes, sir. लिखा है. हाँ, अ फैक्टर इज अ नंबर से लिखना Yes. स्टार्ट करेंगे. एंड मल्टीपल्स के जस्ट ऊपर देखिए, इफ देयर इज नो रिमाइंडर ऐसा करके लिखा है. इफ देयर इज नो रिमाइंडर यहाँ तक लिखा. This is the definition of factors. Okay. Start from a factor is a number. यहाँ से शुरू करो. And if there is no remainder, यहाँ तक लिखो. Okay. Start doing it in your copies, all of you. I am giving you some time to note down in your copies. Start doing and keep your cameras on, everyone. Camera on रखिए अपना.
Listen carefully. I'm telling you one more time. On page number 26, open page number 26 in your book. उसमें आपको एक हेडिंग दिखेगी मल्टीपल्स. मल्टीपल्स हेडिंग के जस्ट नीचे देयर इज अ पैराग्राफ ऑफ 3 लाइंस. वो आपको नोट करना है. राइट डाउन द हेडिंग मल्टीपल्स एंड नोट डाउन दैट पैराग्राफ इन योर कॉपी. उसके बाद सेकंड काम क्या करना है, यू नोट डाउन द हेडिंग फैक्टर्स. फिर आप हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स. और कहाँ से नोट करेंगे फैक्टर्स? मल्टीपल्स के ऊपर जाना है. जो हेडिंग आपने बुक में देखी मल्टीपल्स, उसके ऊपर देखिए अ फैक्टर इज अ नंबर. यहाँ से स्टार्ट करना है एंड ये पूरा इफ देयर इज नो रिमाइंडर यहाँ तक नोट करना है. लास्ट में देखिए इफ देयर इज नो रिमाइंडर करके दिख रहा है वर्ड रिमाइंडर, फुल स्टॉप, वहां तक नोट करना है. ओके, स्टार्ट डूइंग.